भारतीयों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में द ब्राउनिंग वर्जन लेसन का पार्ट सेकंड समझेंगे, पढ़ेंगे। फ्रैंक, लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर? टैप्लो, 6:30 सर। फ्रैंक, well, he is 10 minutes late. Why don't you cut? You could still play golf before lockup. Taplow, oh no, I couldn't cut the crock. Mr. Crocker Harris, I shouldn't think it's ever been done in the whole time he has been here. God knows what would happen if I did. He would probably follow me home or something. Frank, I must admit I envy him the effect he seems to have on you boys in the form. You all seem scared to death of him. What does he do? Beat you all or something? Taplow, good Lord, no. He is not a sadist like one or two of the others. Frank, I beg you pardon. Taplow, a sadist, sir, is someone who get pleasure out of giving pain. Frank, indeed, but I think you went on to say that some other masters. Taplow, well, of course they are, sir. I won't mention names, but you know them as well as I do. Of course, I know most masters think we boys don't understand a thing. But sir, you are different. You are young, well, comparatively anyway, and you are science. You must know what sadism is. Frank, good Lord, what are our schools coming to? Wouldn't be so. Sorry, Taplow, anyway, the Crocker isn't a sadist. That's what I am saying. He wouldn't be so frighteningly if he were, because at least it would show he had some feelings, but he hasn't. He is all shoveled up inside like a nut, and he seems to hate people to like him. It's funny that I don't know any other master who doesn't like being. फ्रैंक, देखो, मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने यहाँ आने का समय कब का बताया था? टैप्लो, 6:30 बजे सर। फ्रैंक, ठीक है, वे 10 मिनट देरी से हैं। तुम कट क्यों नहीं करते? तुम लॉकअप के पहले गोल्फ खेल सकते हो। टैप्लो, ओह नहीं, मैं कट नहीं कर सकता। क्रॉक, मिस्टर क्रॉकर हैरिस को कट करना, मैं नहीं समझता कि पूरे समय में जब से वे यहाँ हैं अभी तक कभी किया गया होगा। भगवान जानता है कि क्या होगा यदि मैंने यह किया। वो शायद मेरे घर तक पीछा करेंगे या कुछ और। फ्रैंक, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं उनसे ईर्ष्या रखता हूँ कि वे तुम लड़कों पर वे प्रभाव रखते हैं। तुम सभी उनसे मौत के समान डर रखते हो। वे क्या करते हैं? तुम सभी को पीटते हैं या कुछ और? टैप्लो, हे भगवान, नहीं,
वे एक परपीड़क हैं नहीं है जैसा कि एक या दो और अन्य हैं। फ्रैंक, मैं समझता नहीं। टैप्लो, एक परपीड़क सर वह व्यक्ति होता है जो दूसरों के दुख में आनंद लेता है। फ्रैंक, वास्तव में? किंतु मैं सोचता हूँ कि तुम यह कह रहे थे कि कुछ अन्य शिक्षक। टैप्लो, अच्छा, निश्चित ही ऐसे लोग हैं सर। मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा, किंतु आप उन्हें मेरी तरह ही जानते हैं। निश्चित ही मैं जानता हूँ कि अधिकांश शिक्षक सोचते हैं कि लड़के समझते नहीं, पर सर आप अलग हैं। आप जवान हैं तुलनात्मक रूप से वैसे भी, और आप वैज्ञानिक हो। आपको मालूम होना चाहिए कि परपीड़क क्या होता है। फ्रैंक, हे भगवान, हमारे विद्यालय कहाँ पहुँच गए हैं। टैप्लो, कुछ भी हो, मिस्टर क्रॉक परपीड़क नहीं है। यह मैं हूँ जो यह कह रहा हूँ। वे इतने डरावने नहीं हैं अगर वे होते, क्योंकि कम से कम तो यह वे दिखाते कि उनके पास भावनाएं हैं, किंतु वे नहीं हैं। उन्होंने एक गुठली के समान अपने को ढक रखा है और वे लोगों को ऊपर से उनसे घृणा करने वाला दर्शाते हैं। ये मज़ेदार है। मैं किसी अन्य मास्टर को नहीं जानता जो यह नहीं चाहता कि लोग उन्हें पसंद करें। फ्रैंक, एंड आई डोंट नो any boy who doesn't use that for his own purpose. Taplo, well, it's natural, sir, but not with the croc. Frank, Mr. Crocker Harris. Taplo, Mr. Crocker Harris. The funny thing is that, in spite of everything, I do rather like him. I can't help it, and sometimes I think he sees it, and that seems to shrivel him up even more. Frank, I'm sure you are exaggerating. Taplo, no sir, I'm not. Informed the other day he made one of his classical jokes. Of course, nobody laughed because nobody understood it, myself included. Still, I knew he had meant it as funny, so I laughed. Out of ordinary common politeness and feeling a bit sorry for him for having made a poor joke. Now I can't remember what the joke was, but suppose I make it now. You laugh, sir. Taplo, you laughed at my little joke, I noticed. I must confess that I am pleased at the advance your Latin has made, since you so readily have understood what the rest of the form did not. Perhaps now you would be good enough to explain it to them, so that they too can share your pleasure. The door up right is pushed open, and Millie Crocker Harris enters. She is a thin woman in her late 30s, rather more smartly dressed than the general run of schoolmaster's wife. She is wearing a cap and carries a shopping basket. She closes the door and then stands by the screen watching Taplo and Frank. It is a few seconds before they notice her. Frank, come along.
Taplo. Do not be so selfish as to keep a good joke to yourself. Tell the others. Oh Lord. फ्रैंक, और मैं किसी अन्य लड़के को नहीं जानता जो उसे अपने खुद के उद्देश्यों के लिए उपयोग करता हो। टैप्लो, ठीक है, पर स्वाभाविक है सर, किंतु क्रॉक के साथ। फ्रैंक, मिस्टर क्रॉकर हैरिज। टैप्लो, मिस्टर क्रॉकर हैरिज, मज़ेदार बात यह है कि हर चीज़ के बावजूद मैं उन्हें ज़रूर चाहता हूँ, और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वे इसे देखते हैं और ऐसा लगता है कि वह उन्हें और सिकुड़ता सिकुड़ा देते हैं। फ्रैंक, मुझे विश्वास है कि तुम अतिशयोक्ति कर रहे हो। टैप्लो, नहीं सर, मैं नहीं। उस दिन फार्म में उन्होंने एक क्लासिकल जोक किया। निश्चित ही कोई भी नहीं हंसा क्योंकि कोई भी उसे समझा नहीं, मुझे सम्मिलित कर। फिर भी मैं जानता था कि वह उसे मज़ेदार मानते होंगे, इसलिए मैं हंसा, सामान्य नम्रता के तहत, और थोड़ा दुख महसूस करके कि उन्होंने एक सस्ता मजाक किया होगा। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि जोक क्या था, किंतु मैं समझता हूँ कि मैं बता सकता हूँ। अब आप हंसिए सर। टैप्लो, तुम हंसे मेरे छोटे से जोक पर। मैंने ध्यान दिया। मुझे स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी लैटिन भाषा के समझ के प्रगति प्रगति के ने तुम्हें ऐसा बना दिया है, क्योंकि तुमने जल्दी से समझ लिया है, किंतु बाकी ने नहीं। शायद अब तुम इसे समझाओ ताकि वे भी तुम्हारे आनंद में हिस्सा बटा सकें। दाहिनी ओर से दरवाज़ा खुलता है और मिली क्रॉकर हैरिस प्रविष्ट होती हैं। वह एक दुबली पतली 30 की उम्र की के आखिर में है। उन्होंने सामान्यतः स्कूल मास्टर्स की औरतों से ज़्यादा स्मार्ट ड्रेस पहनी है। वह एक कैप पहनी है और एक शॉपिंग बास्केट उनके हाथ में है। वह दरवाज़ा बंद कर लेती हैं, फिर टैप्लो व फ्रैंक को देखती हैं। वे दोनों थोड़ी देर बाद उसकी ओर ध्यान देते हैं। फ्रैंक, आइए टैप्लो, इतने स्वार्थी मत बनो कि तुम एक अच्छे जोक को अपने तक ही रखो, दूसरों को भी बताओ। हे भगवान। फ्रैंक turns quickly and seems infinitely relieved at seeing Millie. Frank, oh hello. Millie, hello. Taplo, do you think she heard? Frank, I think she did. She was standing there quite a time. Taplo, if she did and she tells him, there goes my remove. Frank, nonsense. Millie takes the basket from the board, move above the table and puts the basket on it. Millie, waiting for my husband. Taplo, yeah, yes. Millie, he is at the bursar's and might be there quite a time. If I were you, I would go. Taplo, I was to come. Millie, well, why don't you run away for a quarter of an hour and come back? Taplo, supposing he gets here before me. Millie, I will take the blame. I tell you what, you can do a job for him. Take this prescription to the chemist and get it
मेड अप। टैप लो। ऑल राइट मिसिस क्रॉकर हैरिस। फ्रैंक, ओ हेलो। फ्रैंक तेजी से मुड़ते हैं और मिली को देखकर असीम राहत पाते हैं। फ्रैंक, ओ हेलो। मिली, हेलो। टैप लो। क्या आप सोचते हैं उन्होंने सुना होगा? फ्रैंक, मैं सोचता हूँ उसने सुना। वह काफ़ी देर तक वहाँ खड़ी थी। टैप लो। अगर उसने सुना व उन्हें कहा तो मेरा तो रिमूव आया। फ्रैंक, मूर्खतापूर्ण। मिली साइड बोर्ड से बास्केट लेती हैं और टेबल की ओर जाकर उसे टेबल पर रखती हैं। मिली, मेरे पति का इंतज़ार कर रहे हो? टैप लो। अरे हाँ। मिली, वह वर्शर्स पर हैं और काफ़ी देर तक वहाँ रहेंगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं चली जाती। टैप लो। उन्होंने कहा कि खासकर वे आएंगे। मिली, अच्छा देखो तुम एक चौथाई घंटे के लिए जाकर वापस क्यों नहीं आते? टैप लो। मानो वे मुझसे पहले आ गए तो? मिली, तो मैं अपने सिर दोष ले लूँगी। मैं तुमसे क्या कहती हूँ, तुम उनके लिए एक काम कर सकते हो। यह पर्चा केमिस्ट के पास ले जाओ और दवाएं ले आओ। टैप लो। ठीक है श्रीमती क्रॉकर हैरिस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।